हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, Hegemony in a World Political. This is the most important chapter. There are chapters of political science, chapter number 3rd. There is the first question arrive here. Discuss the USA hegemony the hard power. This is the most important question here. Discuss as a hegemony as a hard power. There is the most important here. First of all, there are first meaning of hegemony. What do you mean to the hegemony? Hegemony is related to their relation, a pattern, and balance of military capability between the state. This is a hegemony is here. The hegemony is mean to the related to the relation, patterns, and balances of military capability between to the state. And the first point, according to the US hegemony is here. One example, hard power is a Ayesha who lost here the legs in there is America a missile attack. One example of hard power is Ayesha who is a lost there leg in on the American missile attack. It's a hard power has money that has a broken Ayesha has a body, if not yet a spirit. This is important is money here. And the US military dominance today is both absolute and the relatives as they have to the military capability that can reach any point on the planet and no one can match with them. This is important second point here. And the third point here, the USA today spend more on it is a military capability and military research and development and technology. This is important third point here. The USA today spend more on the military capability and military search and development technology. And fourth point here, the military dominance of the USA is not just based on the higher military spending, but one qualitative is gap are technological and no one can compare with them. And one example it is the USA inventions of Iraq. This is important. And USA military capability has shown to be have serious weakness in policing and occupied territories as after invasion of Iraq. The US has not been able to force the Iraqi people into submitting to be a occupation force of the US lead coalition. That's an important point here. आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्लास 12 CBSE बोर्ड और NCERT बुक के अंतर्गत आधारित है। और इसमें जो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को करेंगे जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हर एक बच्चों के लिए। कहते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो जनरली सी बात है ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो आपको चैप्टर समझने की ज़रूरत है कि इस चैप्टर में है क्या। थर्ड चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस का, यानी देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का, जिसमें समकालीन विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व है। तो सबसे पहले वर्चस्व का मतलब जानना पड़ेगा कि यहाँ पर वर्चस्व का मतलब क्या होता है, अधिकत्व का मतलब क्या होता है। अधिकत्व यानी अधिकार, वर्चस्व यानी पावर। तो इन्हीं बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चैप्टर का जो यहाँ पर विश्व में अमेरिका का वर्चस्व के अंतर्गत है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हेजेमनी का मतलब होता क्या है, यानी वर्चस्व का मतलब होता क्या है। तो ये क्वेश्चन पहला जो आया है, अमेरिकी वर्चस्व को कठोर शक्ति के रूप में चर्चा करें कि अमेरिकी वर्चस्व जो है आखिर किन कारणों से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्चस्व का मतलब जानेंगे। तो ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है वर्चस्व का पहला अर्थ राज्य के बीच संबंध, पैटर्न और सैन्य क्षमता के संतुलन से संबंधित होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्चस्व का मतलब यही होता है कि किसी की पावर,
कितनी पावर है कि दूसरों को जो है प्रभावित कर दे। अगर आपके अंदर वर्चस्व होगा, आजमनी होगा, तो आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, जिसके अंतर्गत सभी के बीच संबंध, पैटर्न, सैन्य क्षमता। कहते हैं कोई भी देश की जो है वर्चस्व तब मानी जाती है जब उसके पास सैनिक शक्ति होती है। और आपको पता है कि विश्व का सबसे अधिक धन खर्च करने वाला मिलिट्री पावर पे अमेरिका है। और अमेरिका, इसी कारण अमेरिका का जो वर्चस्व हर देश में दबदबा है। अमेरिका का वर्चस्व सभी जो है देश मानता है और अमेरिका पावरफुल के रूप में जाना जाता है। तो वर्चस्व का अर्थ जान गए होंगे, जिसका चलती हो, जिसका पूरे विश्व पे एक अधिकार हो, उसे वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, चाहे वो संबंधों के अंतर्गत हो, पैटर्न के अंतर्गत हो, या सैन्य क्षमता के अंतर्गत हो, तो उसे हम हेजमनी कहते हैं या वर्चस्व कहते हैं। कहते हैं जैसे आपके परिवार में माता पिता का आपका वर्चस्व होता है। जनरली से बात देखा जाए तो पितृ प्रधान समाज में पिता का वर्चस्व सबसे ऊपर होता है, यानी जो पिता कहता है वही मानना पड़ता है। तो विश्व में देखा जाए तो अमेरिका जो है सुपर पावर है, और इसका वर्चस्व इतनी है कि वो किसी भी देश के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि सब पावर उसी के पास है। इवन कि वर्ल्ड बैंक सब कुछ उसी के पास है। तो देखा जाए तो उसका वर्चस्व सबसे ऊपर है। तो वर्चस्व का अर्थ आप समझ गए होंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। अब इसको कठोर शक्ति के रूप में देखा जाए तो आखिर कठोर शक्ति के रूप में कैसे हम देख सकते हैं इसको, तो इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट यहाँ पर है जिस पे हम प्रकाश डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका कठोर शक्ति के रूप में कैसा है। अब देखा जाए तो पहला पॉइंट यही कहता है, कठोर शक्ति, एक उदाहरण हम लेते हैं। ऐसा है जिसने अमेरिकी मिसाइल हमले में अपना पैरों को खो दिया। एक लड़की है ऐसा जिसने अमेरिकी मिसाइल हमले में अपना पैर जो है खो दिया, और ये सत्ता का वर्चस्व है जिसने ऐसा शरीर को तोड़ दिया, उसकी आत्मा को नहीं। यानी देखा जाए तो अमेरिका का इतना पावर था, इतनी शक्ति थी कि एक बच्ची को जो है मिसाइल हमला करके उसकी जो है पैरों को नष्ट कर दिया। यानी अमेरिका का ये वर्चस्व है। जैसे आपको पता ही होगा कि अमेरिका का वर्चस्व था नहीं तो क्या था, जब उसने हिरोशिमा नागासाकी पे जो है परमाणु बम से अटैक किया। आपको पता है कि आइंस्टाइन ने पहले ही ये बात साफ कर दिया था कि ये परमाणु बम जो है बहुत घातक है और इसे जनजीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने वर्चस्व मनवाने के लिए उसने जो है हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम से अटैक किया। कहते हैं कैसा भी स्थिति पैदा हो जाए हमें परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है। और इसका जो हिरोशिमा नागासाकी भी जो भोग चुका है, कहते हैं वहाँ आज भी जेनेटिक्स में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। यानी आज भी जो वहाँ के बच्चे जन्म लेते हैं काफ़ी जो है डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, डिसएडवांटेज कैटेगरीज के होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें उनमें मिसिंग होता है। तो आप समझ सकते हो कि परमाणु बम की कितनी खतरनाक रूप था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसका प्रयोग किया। तो अमेरिका का ये वर्चस्व नहीं तो क्या था। कहते हैं अमेरिका किसी भी देश पे बहुत आसानी से अटैक कर देता है और इसका जो है बोलने वाला कोई देश नहीं है, तो इसका मतलब अमेरिका का वो वर्चस्व ही है। ठीक है, तो उसकी कहते हैं आप किसी को अटैक करके ख़त्म तो कर सकते हो अपनी वर्चस्व मनवाने के लिए, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी आत्मा जो है सब पड़ी है और वो मानेगा तभी आप पावरफुल बन सकते हो। आज अमेरिकी सैन्य प्रभुत्वपूर्ण और सापेक्ष दोनों है। यानी देखा जाए तो अमेरिका का सैनिक क्षमता बहुत काफ़ी अधिक है और ये सभी देश मानते हैं। उनके पास सैन्य क्षमताएं हैं जो ग्रह पर किसी भी बिंदु तक पहुंच सकती है, यानी इस ग्रह पर कहीं भी जाने के लिए सक्षम होती है और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी का मतलब होता है कठोर और वर्चस्व। ठीक है ना, कि उनकी जो है बात अब कोई भी नकार नहीं सकता। उनकी इतनी क्षमता है कि वो कहीं भी बहुत ही आसानी से अटैक कर सकते हैं। कहते उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके भी दिखाए हैं कि दुश्मनों को उनके घर में जाके जो है उनको मारा है। तो इससे अधिक वर्चस्व क्या हो सकता है। अमेरिका आज अपनी सैन्य क्षमता और सैन्य अनुसंधान और विकास पद्धतियों पर अधिक खर्च करता है। तो जनरल सी बात है, अपनी हेजमनी को मनवाने के लिए, अपनी पावर को पूरे विश्व को समक्ष रखने के लिए अमेरिका जो है सैन्य क्षमता को और भी बढ़ा दिया है। सैन्य अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी का जो है अधिक खर्च कर रहा है। तो ये उसकी वर्चस्व है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो देखा जाए तो अमेरिका का सैन्य प्रभुता सिर्फ
उच्च सैन्य खर्च पर आधारित नहीं है, बल्कि गुणवत्ता अंतर, तकनीकी अंतर पर भी आधारित है। देखिए दोस्तों, ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्चस्व का मतलब होता है शक्ति, यानी अपनी पावर। अब पावर अगर आपका एक शारीरिक पावर भी हो सकता है, या आपको जो है किसी लोगों के द्वारा भी पावर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाए रखने के लिए सैन्य पे आधारित रखा है, और सैन्य पर सबसे अधिक खर्च जो है अमेरिका ही करता है। और ये नहीं कि खर्चों पर ही आधारित है, कहते हैं अमेरिका के सैनिकों में काफ़ी उच्च गुण की गुणवत्ता पाई जाती है और तकनीकी अंतर पर भी आधारित होती है। अमेरिका के पास ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसके समक्ष विश्व के कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती, और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है। तो वो उसकी वर्चस्व को और बढ़ा देता है। इसका एक उदाहरण इराक पर अमेरिकी आक्रमण भी है। आपको पता भी होगा कि अमेरिका ने जो है इराक पर भी आक्रमण करके अपने वर्चस्व जो है पूरा विश्व में साबित किया है। तो इससे पता लगता है कि अमेरिका का मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं है। तो इसी को हम वर्चस्व कहते हैं। अमेरिकी सैन्य क्षमता को कब्जे वाले क्षेत्र को जो है पूलिंग में गंभीर कमजोरियों को दिखाया है, क्योंकि इराक पर आक्रमण के बाद अमेरिका इराकी लोगों को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की कब्जे वाली ताकतों के प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं है। तो जनरल सी बात है कि अमेरिका ने इराक पे जो है हमला करके वहाँ पर पूरे क्षेत्र पे अपना दबदबा बना लिया है। तो इन्हीं बातों से जो है कठोरता और हजमनी की बातें यहाँ पर साफ होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा चैप्टर भी यही है। तो सबसे पहले आपको हजमनी यानी जो है वर्चस्व का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इसको दूसरा शब्द में हम प्राधित्व भी कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अधित्व भी आ जाए, वर्चस्व भी आ जाए, हजमनी भी आ जाए, तो इसका मतलब आपको हर एक बातों को समझना है। देखिए, जब तक आप टॉपिक की गहराई को नहीं समझिएगा तब तक आप कोई क्वेश्चन करने में सक्षम नहीं होइएगा। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल्स, a second question is the most important arrive here. Explain the UNA operations called Operation Desert Storm. This is the most important Operation Desert Storm here. And this is operations according there has many in a world politicals. Their answer in August 1990, Iraq invaded to the Kuwait. You know that the Operation Desert Storm is here started August 1990. Iraq invaded Kuwait. A first point here, series of the diplomatic attempt to fail to the convincing Iraq to quit it is a aggression. This is important. There is the Operation Desert Storm here. A series of diplomatic attempt fail at the convincing Iraq to be quit it is a aggressions. And so the UN decided to liberate Kuwait by force. So the UN decided to liberate Kuwait by force. And third point is important also here. A massive coalition force of 660,000 troops from the 34th country and fought against Iraq and defected it what come to be now as the first Gulf War. Is important. You know that 660,000 troops from a 34th country. That is known as the first Gulf War. The Iraqi forces were quickly defeated and forced to be withdrawn from Kuwait. The Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from the Kuwait. And this fully operation was termed as a Operation Desert Storm. There is a fully operation was termed as Operation Desert Storm. यहाँ पर जो हमारे चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दूसरा आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन की व्याख्या करेंगे कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाई थी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। काफ़ी महत्वपूर्ण थी ये। आखिर देखा जाए तो ये ऑपरेशन किस कारण से चलाई गई थी, अमेरिका किस बात पे जो है अपना वर्चस्व मनवाने के लिए यहाँ पर ये जो है ऑपरेशन चलाई थी। तो बात यहाँ करें अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, क्योंकि
ये आक्रमण कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण थी 1990 में। आपको बता दूं कि जो कोल्ड वॉर की स्थिति थी 1951 में ख़त्म हुई थी। जनरली सी बात है, 1951 में टोटली ख़त्म हुई थी, ठीक है। लेकिन अगस्त 1990 में इराक में कुवैत पर आक्रमण करना ये कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये दुनिया को दिखाना था कि उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म चलाई गई थी। तो क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर की स्थिति भी थी, यानी इस समय कोल्ड वॉर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, और कुवैत पे हमला करके जो है अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि इसकी जो है पूरा विश्व पे हज़मनी है, यानी वर्चस्व है। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट यहाँ पर जो आया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इराक को अपनी आक्रामकता छोड़ने के लिए मनवाने में सिविल वार कूटनीति प्रयास विफल रहे, क्योंकि अमेरिका जो आक्रमण करता है, आपको पता है कि अमेरिका बार बार जो है हमला किया जा रहा था, और इराक को अपनी आक्रामकता छोड़ने के लिए मनाने में जो कूटनीति प्रयास विफल रहे, तो जाके अमेरिका ने हमला किया। इराक को पहले अमेरिका ने चेतावनी भी दी, लेकिन इराक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराने का निर्णय लिया। देखा जाए तो इराक वालों ने जो है कुवैत पर जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और फिर संयुक्त राष्ट्र ने जो है उसको आज़ाद कराने के लिए कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराने का निर्णय लिया गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उस पर हमला किया, आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका का जो हमला हुआ था कुवैत पे, वो इराकी जो है लोगों से छुटकारा देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर अच्छे विचारधारा थी अमेरिका की। देखा जाए तो 34 देशों को 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल गठबंधन सेना ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप समझ सकते हो कि 34 देशों ने जो है यहाँ पर इराक के साथ लड़ाई करने के लिए खड़ा हुआ। यानी यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने जो है कुवैत को जो है इराक के कब्जा छुड़ाने के लिए बहुत से देशों को सहायता लिया, और देखा जाए 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल गठबंधन सेना ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, यानी एक खाई थी जिसमें बहुत सारे सैनिक थे और देशों की कमी नहीं थी, 34 देश सम्मिलित थे। कहते हैं इराक सेनाएं जल्द ही हार गई और कुवैत से हटने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि आपको पता है इराक हमेशा ही ऐसे देशों को अपने अंतर्गत लेना चाहता है जिसमें धन दौलत बहुत अधिक हो, और उस समय अमेरिका ही ऐसा देश था जो इराक से जो है दो चार हाथ कर सकता था, और कुवैत को छुड़ाना भी ज़रूरी था। इसलिए अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए जो है इराक के हाथों से कुवैत को छुड़ाने के लिए कूटनीति और बलपूर्वक जो है बल का प्रयोग किया, और इसके साथ देने के लिए 34 देशों ने अपनी सैनिक भेजी, और इसमें सैनिकों की संख्या जो थी 6,60,000, और सारे सैनिकों ने बहुत ही आसानी से जो है इराक को हरा दिया और कुवैत को जो है इराक के चुंगल से मुक्त कर दिया। और इसी प्रथम युद्ध को हम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इराक की सेना काफ़ी कमज़ोर निकली, क्योंकि विश्व के 34 देशों के सेनाओं की संख्या के सामने इराक की सेना जो है बहुत विफल रही और इराक हार गई। इसी को जो है हम पूरे ऑपरेशन को, जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ, उसको हम जो है ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म समझ गए होंगे कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। किन कारणों से किया? क्योंकि कुवैत को जो है इराक ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़रूरी था कि ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म क्या था। अब देखिए, इस बात से दो बातें तो साबित हो गई। एक तो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया और दूसरा जो है कुवैत इराक के चंगुल से मुक्त हो गया। तो देखा जाए तो अमेरिका का दो तरफा यहाँ फ़ायदा हुआ और इसमें जो है बहुत से देशों का जो है अमेरिका को समर्थन भी प्राप्त हुआ। तो इसी कारण से जो है अमेरिका का वर्चस्व आगे बढ़ा। लेकिन ये सारी कार्रवाई जो हुई
उसको हम ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अराइव हियर, व्हाट वाज द गल्फ वॉर ऑफ 1990? दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट वाज द गल्फ वॉर ऑफ 1990? This is important. You know that Gulf War is the most important here. In August 1990, Iraq invaded to Kuwait. Iraq invaded to Kuwait and occupied and annexed it. United Nations tried to convince Iraq to quiet its aggression, but the UNA failed to convince. You know that there's an important point here. August 1990, Iraq invaded to Kuwait and occupied and annexed it to the United Nations and tried to convince Iraq to be quiet its aggressions, but UN failed to convince. This is an important point. And second here, then the UNA mandated their liberation of Kuwait by force. There is a liberation of Kuwait by force. The USA President George H.W. Bush heralded the emergence of New World Order. This is the most important here. The President of George H.W. Bush is heralded the emergence of New World Order. In response to this, there was an emergence of war which come to be known as the First Gulf War. The first Gulf War, in this war, a coalition of forces from almost 34 countries fought against Iraq. There is the most important first Gulf War here. The coalition of force is almost 34 countries fights against Iraq. This is the most important here Gulf War. And this war was fought under to the code name Operation Desert Storm. There is the war is a fight under their code of name Operation Desert Storm. And this operation of the UNA was mostly American. This operation is UNA was mostly American Operation Desert Storm. And there was about 75% of the force from the USA, 75% of USA and 25% for other countries. The first Gulf War is relieved there was technical gap that has to open up between USA military force and other countries. This is important. The first Gulf War relieved there was technological gap and that has to open up between the USA military force and other countries. This is important. The USA was smart bombs made it a computer war. The use of a smart bomb made it computer wars and whispered to television coverage made it a video game war. This is the most important here Gulf War here. अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड क्वेश्चन कि 1990 का खाड़ी युद्ध क्या था। दोस्तों आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा क्वेश्चन को जो है सीरीज वाइज लाता है। कारण क्या है, पहले आपको एक टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ऐसे ही हमने किया। हमने पहले क्वेश्चन में जो है अमेरिका का वर्चस्व के बारे में जाना, क्या वर्चस्व होती क्या है। दूसरे में हमने जाना कि यहाँ पर ऑपरेशन डिजॉर्ट स्टॉर्म क्या थी, क्योंकि ये उसके हजमनी के अंतर्गत ही सब थी। और जब ये युद्ध सब हुआ तो इसको किस नाम से पुकारा गया, तो इसको खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। तो एक क्वेश्चन की सीरीज़ है, एक लड़ी है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यही बात बताता है कि 1990 के खाड़ी युद्ध क्या था। आखिर जो 1990 में युद्ध हुई थी यानी ऑपरेशन डिजॉर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डिजॉर्ट स्टॉर्म जो थी दोस्तों एक कोड थी। ठीक है, ये क्या थी, एक कोड थी जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन डिजॉर्ट स्टॉर्म, यानी एक कोड थी। लेकिन यहाँ पर उस युद्ध को खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया, उस युद्ध को खाड़ी के युद्ध के नाम से जाना गया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेशन डिजॉर्ट स्टॉर्म क्या थी। ऑपरेशन डिजॉर्ट स्टॉर्म जो थी एक कोड थी, ठीक है, जो कि इराक को हमला करके हराना था और कुवैत को छुटकारा देना था, समझे। क्योंकि कुवैत पर जो है इराक का आतंकवादी कब्जा था
और अमेरिका जो है इसको आज़ाद करना चाहता था। और अमेरिका का यहाँ पर सहयोग जो है 34 देशों ने दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर खाड़ी युद्ध में क्या क्या घटना घटी। आपको यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं एक कोड थी, और कोड के अंदर खाड़ी युद्ध ही था। अब हम खाड़ी युद्ध के और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो यहाँ पर आया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कहा जाए तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। इस साफ शब्दों में समझ में आ गया होगा आपको कि 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिया। और संयुक्त राष्ट्र ने इराक को अपने आक्रामकता छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश भी की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने इराक को ये बात समझाने की कोशिश भी की कि आप कुवैत पे आक्रमण ना करें, कुवैत को जो है आज़ाद कर दें, लेकिन इराक वालों ने उनकी एक न सुनी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समझाने में विफल रहा। अमेरिका ने बहुत समझाने की कोशिश किया इराक को, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे और कुवैत पर अपना दबदबा बनाए रखे। अब जर्नल सी बात है, कोई जिद करने लग जाए, कोई ना माने तो उसको जो है बलपूर्वक, देखो बातों से तो इराक यहाँ समझा नहीं, अब जर्नल सी बात है, बलपूर्वक ही उसको यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। इन्हीं कारणों से संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत पे जो है बलपूर्वक मुक्त कराने के आदेश दिए। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है कुवैत को आज़ाद करने के लिए बलपूर्वक जो है आक्रमण करने के आदेश दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उद्भव की सराहना किया, क्योंकि अमेरिका के उस समय जो थे प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश थे, जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को काफ़ी सराहना किया कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत जो है इन्होंने कुवैत को भी आज़ाद कराने के लिए जो यहाँ पर है खाड़ी युद्ध लड़ी। इसके जवाब में युद्ध का उद्भव हुआ, जिसमें प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी जो है ये ऑर्डर हुई और ये जो मुक्ति करने की विचारधारा आई, इसके कारण जो है युद्ध का सूत्रपात हुआ, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में लगभग 34 देशों ने विशाल संगठन सेना से इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी देखा जाए तो इसमें अमेरिका ही सम्मिलित नहीं था, 34 देशों ने अमेरिका का समर्थन किया और अपनी सैनिक जो है अमेरिका सैनिक से मिला डाला। और इस कारणों से जो है इराक के खिलाफ बहुत बड़ा जो है युद्ध लड़ी गई। इस युद्ध को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 6,60,000 सैनिक थे। ये कम सैनिक नहीं होते हैं, और इराक को जो है घुटना टेकना पड़ गया बहुत ही जल्दी। तो इसी को ही हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और देखा जाए तो यह युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के एक कोड नाम से लड़ा गया। यानी जो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कोड के नाम से लड़ा गया। और यूएनए का यह ऑपरेशन ज़्यादातर अमेरिकी थी। यानी देखा जाए तो इस ऑपरेशन में सबसे अधिक सैनिक जो थे अमेरिका के ही थे। यानी देखा जाए तो यहाँ लगभग 75% सेना अमेरिका की थी और 25% जो थी 34 देशों में से सैनिक गई हुई थी। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने 75% सेना को जो है इसी युद्ध में झोंक दिया। प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिकी सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुए विशाल तकनीकी अंतर को भी उजागर किया। यानी प्रथम खाड़ी युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिका सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुए विशाल तकनीकी अंतर को भी उजागर किया, कि अमेरिका के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी थी और विश्व के पास किसी के पास भी टेक्नोलॉजी की इतनी भरमार नहीं थी। तो इस बात को भी अंतर को उस समय उजागर हुई कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है। और देखा जाए तो इस युद्ध में एक और बात महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पर स्मार्ट बमों के प्रयोग ने इसे कंप्यूटर युद्ध भी बना दिया। यानी स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया इस युद्ध में, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जा सकता है। व्यापक टेलीविज़न कवरेज ने इसे वीडियो गेम युद्ध बना दिया। और यानी देखा जाए तो ये युद्ध जिस जिस क्षेत्र में होती थी उसमें टेलीविज़न कवरेज भी होती। जैसे आपने अभी का भी युद्ध देखा होगा, अभी जो हो रहा है आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर ज़ेलेंस्की जो हो रहा है, ज़ेलेंस्की के साथ जो युद्ध हो रहा है, उसमें भी जो है मीडिया का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, टेलीविज़न का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी घटना घटने से पहले जो है वीडियो गेम की तरह जो है युद्ध लड़ी जा रही है। तो ये युद्ध आज की नहीं है। जब कहते हैं जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुई थी उस समय भी कुछ
कुछ इसी प्रकार की युद्ध भी लड़ी गई थी उस समय भी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और उस समय देखा जाए 1990 के दशक में उसमें कंप्यूटर की बहुत कमी थी, और आपको पता है उसमें टेक्नोलॉजी भी इतनी परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पास वो सारी चीज़ें थी जो उसको विश्व से अलग कर रही थी। और ये युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण भी थी, ये युद्ध न्याय उचित भी थी और बहुत से देशों का समर्थन भी था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इस युद्ध में जो है कंप्यूटर का बहुत ही प्रयोग किया गया और टेलीविज़न कवरेज भी हुई, इसलिए इस वीडियो को वीडियो गेम युद्ध भी कहा जा सकता है। द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। मेंशन द मेन इवेंट ऑफ 9/11। 9/11 is the most important for the view of Americans here. The 9/11 is very sadness incident here. You know that first of all, understanding the causing of 9/11. What are the reasons of 9/11 here? The first of all here is answer. Islamic extremism was stirred by the Iranian Revolution. The Soviet invasions of Afghanistan and the assassinations of Egyptian president. That extremism turned anti-American because of USA support for Israel and the repressive as cellular Arab regimes. This is important. Ensuring birth rates as limited and economical opportunities generated. And social pressure also. You know that soaring of birth rate and limited economical opportunity and generated social pressures here. Extremists of thinking embrace of violence because local regimes left no other option peaceful of democratic reforms here. This is important. The proliferation of weapons give activists and the means to be inflict harm, and the invasion of communication frustrated and worldwide publicities about there is the deeds of which is a serve their psychological welfare objective and unsettling Western population. It's important. The main point here, 9/11, there is event is the most important point here. The first of all, on 9 September 2001, 19 hijacker coming from the Arab countries. You know that is 9 September 2001, 19 hijacker coming from the Arab country and took control over 4 American commercial aircraft. And shortly after takeoff, and there is them into the important building in the USA. Know that there is an important point here. On the 11th September 2001, 19 hijack coming from the Arab countries and took control over American commercial aircraft. And shortly after takeoff and flew them into the important building in the USA. One airliners each crashed into the north and south tower of the World Trade Center in New York. It's important. One airlines each crashed into the north and south tower of the World Trade Center in New York. A third aircraft crashed into the Pentagon building in Gatos, Virginia, and where USA Defense Department in a headquarter. Is important. There is an important one here. A crash in the north and south tower of the World Trade Center. Another here, aircraft crashed into the Pentagon building is at Gatos, Virginia, where the USA Defense Department is a headquarter. And the next year, the fourth aircraft, presumably bound for the Capitol's building of USA Congress, come down in the field in the Pennsylvania. This is important here. Fourth attack, Pennsylvania, and the attack killed nearly 3,000 people on this incident. This incident is called 9/11. यहाँ जो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है
चौथा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 9/11 की घटना से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे और 9/11 के अंतर्गत क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर डालता है। तो इसी के अंतर्गत जो है 9/11 के हमने कारणों और उसका कैसे घटना घटी, तो इसमें जो है हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो 9/11 की मुख्य घटनाओं का हमने उल्लेख करना है। आखिर 9/11 का घटना जो घटाई गई किन कारणों से घटाई गई। देखा जाए तो 9/11 की जो घटना घटानी थी उसको पहले ही जो है पूरा ही रूल रेगुलेशन बना लिया गया था। कहते हैं अगर इन कारणों का हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि ईरानी क्रांति, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या से इस्लामी चरमपंथी भड़क उठा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईरानी क्रांति में जब ईरान में क्रांति हुई तो अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण भी हुआ, सोवियत ने आक्रमण किया और मिस्र के राष्ट्रपति के हत्या से इस्लामी जो है चरमपंथ भड़क उठे। क्योंकि इस्लाम के राष्ट्रपति का जो है मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या करना और इसे इस्लामी का जो है धर्मराज सजाना, कहते हैं इजराइल और दमनकारी धर्मनिरपेक्ष अरब शासन के लिए अमेरिका समर्थन के कारण हुआ उग्रवादी अमेरिका विरोधी बन गया। यानी जब ये हत्या हुई तो अमेरिका ने जो है उसको समर्थन किया। जब मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या हुई जो कि इस्लामी चरमपंथी भड़क उठे थे पूरी तरह से, और इजराइल और दमनकारी धर्मनिरपेक्ष अरब शासन के लिए अमेरिका समर्थन के कारण अमेरिका ने जो है इजराइल पे और दमनकारी धर्मनिरपेक्ष लोगों का जो है समर्थन किया। इन्हीं कारण से जो है उग्रवाद जो थे अमेरिका के विरोधी बन गए और अमेरिका के खिलाफ हो गए। बढ़ती जन्म दर और सीमित आर्थिक अवसरों ने सामाजिक दबाव उत्पन्न किया। बढ़ती जन्म दर, आपको पता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, ये भी एक तरह का दबाव है और शायद भारत के लोग कब समझे ये समझना मुश्किल है। बढ़ती जन्म दर और सीमित आर्थिक अवसरों ने सामाजिक दबाव उत्पन्न किया। जनरल सी बात है, जो जनसंख्या बढ़ती है और अर्थव्यवस्था सिमट जाती है तो सामाजिक दबाव उत्पन्न हो जाती है, काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिला है। और चरमपंथी सोच ने हिंसा को गले लगा लिया। यानी चरमपंथी ने सोच ने हिंसा को गले लगाया क्योंकि स्थानीय शासन को शांतिपूर्ण और लोकतंत्र सुधार के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। यानी शांतिपूर्ण लोकतंत्र सुधार के लिए इनके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। हथियारों के प्रसार ने कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के साधन प्रदान भी किए, क्योंकि जो हथियार की जो प्रसार थी इसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया और संचार में नवाचार ने अनेक कार्यों के बारे में दुनिया भर में प्रचार की सुविधा प्रदान की है, जिसने पश्चिमी आबादी को परेशान करने के मनोविज्ञानिक युद्ध को उद्देश्य को पूरा किया। यानी ये सब उस समय कारण बनी युद्ध होने का। यानी जो इस पर अटैक हुआ 9/11 में, तो ये सब कारण थी कि 9/11 का ये मुख्य कारणों में माना गया है। आखिर 9/11 किस प्रकार अंजाम दिया गया, चलिए इस पॉइंट पे हम जो है प्रकाश डालें। देखिए इस हमला को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने पहले ही सारे जो है अपना उद्देश्य सामने रख चुके थे। कहते हैं 11 सितंबर 2001 को अरब देशों से आए 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों पर नियंत्रण कर लिया। यानी देखा जाए तो 11 सितंबर 2001 के अरब देशों से आए, कौन से देश, अरब देश से आए 19 अपहरणकर्ताओं में उड़ान भरने के तुरंत बाद 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमानों पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। उन्होंने अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों में उसे उड़ा दिया। यानी ये विमानों को जो है अमेरिका के महत्वपूर्ण जो है संस्थाओं से टकरा दिया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावरों में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई। यानी देखा जाए तो 2 विमान को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया गया। यानी न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे के टावर से उत्तरी और दक्षिण टावरों में
एक एक विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई। तीसरा जो था विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन में पेंटागन भवन में दुर्घटनाग्रस्त किया गया, जहां अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था। यानी यहाँ पर जो है उग्रवादी ये बताना चाहते थे, टेररिज्म ये बताना चाहते थे कि हम आपके किसी भी विभाग पे सक्षम रखते हैं आपको ख़त्म करने का। चौथी विमान जो था संभवतः अमेरिका कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग के लिए जा रहा था, लेकिन पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में गिरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें देखा जाए तो हमले में करीब 3000 लोग मारे गए। 3000 लोग कम नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कार्यक्रम को जो है आतंकवादियों ने किस प्रकार से अंजाम दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी 11 सितंबर 2001 को 19 अपहर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद, यानी जो किडनैपरों ने क्या किया, 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के तुरंत बाद 19 लोगों ने अमेरिका के यानी इकोनॉमिकल विमान पे, जो वर्जिनिया विमान पर 4 विमानों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया और 4 विमानों को जो है अलग अलग जगहों पर टकराया। पहले 2 विमानों को उन्होंने कहाँ टकराया, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। एक विमान उत्तरी क्षेत्र में, दूसरा विमान दक्षिण टावर से उन्होंने टकरा दिया। उसके बाद तीसरा विमान जो था पेंटागन भवन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी तीसरा विमान को उन्होंने कहाँ टकराया, पेंटागन भवन में, जहां अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उस पर उन्होंने अटैक किया। चौथा विमान को उनका उद्देश्य था अमेरिकी कांग्रेस के कैपिटल बिल्डिंग पे टकराए, लेकिन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के टकराने से पहले ही जो पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में ये गिर गया। तो ये चौथी विमान अटैक था और ये बहुत दुखदायक और बहुत ही दर्दनीय घटना थी, जिसमें करीबन 3000 लोग मारे गए। तो इसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। आपने यहाँ पर कारणों का और किस प्रकार जो है इन्होंने टकराया, इसका भी जो है यहाँ पर मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो दोस्तों इस शब्दों को नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब तक ये नोट नहीं रहेगा आपको समझ नहीं आएगा। Our next 5th question is the most important here. What is the mean by the Operation Iraqi Freedom? That is important. What do you mean by the Operation Iraqi Freedoms here? And mention its main objective as well as the hidden objective. There is the mention of the objective and hidden objective also. This is the most important question here. Operation Iraqi Freedoms here. Operation Iraqi Freedom, it was the code name. Operation Iraqi Freedom, it is the only name of the code, advance of the Iraq by the USA. USA given a code of Operation Iraqi Freedom, and this operation was launched on 19 March 2003, and more than 40 other countries joined their coordinations of the wheelings after the unit refused to be give a permission for the invasion. This is important. From Operation Iraq Freedom, there is a name given by the USA. This is a code, and the launching by the 9th March 2003. And the most important things here 40 other countries joined their coalition of wheeling here. Important. Let's see other main objective and hidden objectives here. The main objective and hidden objectives here, the main as well as the hidden objective of the inventions was to prevent Iraq from developing in the weapon of mass destruction, means WMD, weapon of mass destruction. This is WMD. When no proof of the WMD was found in Iraq, it was speculated that the invention was motivated by the other objectives, which included controlling oil field of Iraq and installing a regime friendly to the United States. This is important. There are main objective and hidden objective here. Hidden objective here of weapons of mass destruction, means WMD, and there is a control in the field of Iraq and install there
regimes of friendly to be United States. It's important. And then let's see the consequence of Operation Iraq Freedom. The consequence of the Operation Iraq Freedom, that is the most important here. Its use was not able to the peacefully Iraq even to the government and feel the swiftly a fully fledged operation was originated against the USA by Iraq. The USA had a loss of 3,000 military personnel in the war, and since the USA led to the invasion, it was estimated that as a 50,000 Iraqi civilian has been killed. This is important consequence here. There is the USA. The fully folded operation was designed to the against the USA by the Iraq, and there is a 3,000 military personnel is war is lost their life, and 50,000 Iraqi civilians they are killed in this war. This is the most important consequence. जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन पाँचवा आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाँचवा क्वेश्चन को अर्थ को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए इराक पे जो है अमेरिका ने अटैक किया, ठीक है, तो जनरल सी बात है कुवैत को छुड़ाने के लिए, लेकिन इस ऑपरेशन को जो है क्या नाम दिया गया, तो यहाँ पर इन बातों के ऊपर जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से क्या तात्पर्य, आखिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था और इसके मुख्य उद्देश्य के साथ छिपे हुए कुछ उद्देश्य का उल्लेख करें, यानी जो इसके साथ कौन से उद्देश्य छुपे हुए थे और इन उद्देश्यों का क्या अर्थ था। जनरली बात यहाँ देखें हम तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था क्या एक तरह का वॉर था। जनरली अगर हम यहाँ बात करें तो यह अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण के लिए दिया गया एक कोड नाम था, यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए दिया गया एक कोड था, और यह ऑपरेशन 19 मार्च को लॉन्च किया गया 2003 में, यानी 19 मार्च 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया। और कहते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है आक्रमण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश जो थे इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम देखा जाए तो एक तरह का एक कोड था, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका उद्देश्य क्या था और इसमें छुपे हुए उद्देश्य पे जो है प्रकाश डालने की हम कोशिश करें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है मुख्य उद्देश्य और छुपे हुए उद्देश्य, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अगर हम आगे बात करें आक्रमण का मुख्य और छिपा हुआ उद्देश्य इराक को जो है सामूहिक विनाश के हथियार यानी देखा जाए तो WMD विकसित करने से रोकना था, क्योंकि इराक देखा जाए तो इराक को जो है इराक में WMD विकसित करने की कोशिश हो रही थी, और WMD का मतलब यही होता है सामूहिक विनाश के हथियार। तो ये चीज़ों को रोकना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था USA के लिए। तो इस इराक में WMD का कोई सबूत नहीं मिला, तो यह अनुमान लगा लिया गया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था। यानी देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पे जो जोर दिया और इस ऑपरेशन को इसलिए चलाया कि उसको लग रहा था कि इराक में जो सामूहिक विनाश के हथियार, ठीक है, उसको विकास नहीं करना देना चाहते थे। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो इनको ये सबूत मिला कि वहाँ पर कुछ भी जो है ये एक्टिविटी नहीं मिली। तो इन्होंने अनुमान लगा लिया कि आक्रमण अन्य उद्देश्य से प्रेरित था, जिसमें इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इनका उद्देश्य बहुत साफ था कि जो इराक के तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना था। तो अमेरिका का देखिए आज के समय में यही हो रहा है, लोग कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। इनका मेनली जो इनको ये था, अमेरिका वालों को ये लग रहा था कि शायद इराक जो है कोई हथियार या WMD के रिगार्डिंग कार्यरत है, लेकिन जब उन्होंने WMD के रिगार्डिंग जो है इंक्वायरी की तो उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनको कुछ मिलना ही नहीं था जब वो एक्टिविटी थी ही नहीं। लेकिन देखा जाए फिर भी इनका उद्देश्य जो था उस क्षेत्र में जो है कब्जा करके
वहाँ के तेल को जो है अपने नियंत्रण में करना। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना शामिल था। कि अनुकूल मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन जो है इराक के सारे नागरिक हो जाए और वहाँ पर जो है अमेरिका का वर्चस्व और भी बढ़ जाए। तो इन्हीं कारणों से जो था ये उद्देश्य था। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। छुपा हुआ उद्देश्य क्या था कि वहाँ इराक के जो है तेल खजानों पर जो है कब्जा करना था। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक बहाना बनाई गई कि उनको जो है एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि सामूहिक विनाश के लिए उन्होंने जो है हथियार रखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा उनको सबूत नहीं मिली। फिर भी जो है वहाँ के तेलों के ऊपर उनका जो है अधिकार बनाने में सक्षम होने के लिए ये जो है ऑपरेशन चला है। अगर आगे हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के 2 परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणामों के ऊपर हम प्रकाश डालें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के 2 परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखता है ये क्वेश्चन। अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया। अमेरिका जो है इराक को शांत करने में असफल हो गया। कहते सरकार तेज़ी से गिर गई और इसका अमेरिका ने खिलाफ एक अन्य पुण्य अभियान शुरू कर दिया। तो जर्नल सी बात है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम ये हुआ कि इसके कारण जो है सरकार बहुत तेज़ी से गिरने लगी और इराक द्वारा अमेरिका के खिलाफ पुण्य अभियान शुरू कर दिया। युद्ध में अमेरिका के देखा जाए तो 3,000 से अधिक जो है सैन्यकर्मी को खो दिया। 3,000 काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जिस जो है सैनिक कर्मचारियों को जो है अमेरिका ने खो दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद से यह अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर जो इराकी में जो है कम से कम 50,000 नागरिक मारे गए। तो ये भी दुखदायक परिस्थिति थी। कहते हैं युद्धों के आड़ में जो है बड़े लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं और ये जो है हर एक देश में चलता ही रहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो भी देश हो। कहते हैं कूटनीतियों में आना स्वाभाविक बना देता है। Our next 6 question is the most important here. How did the United States of America launch a war against the Iraq? This is the most important question here. How did the United States of America launch a war against Iraq? This is the most important. On 9th March 2003, the USA launched its invasion of Iraq under the code name of Operation Iraq Freedom. The more than 40 other countries joined their USA lead to the coalition of Beijing after the UN refused to give it a mandate of the invasion. This is important, but there is a reason of the launch against their Iraq for their Operation Iraq Freedom here. The purpose of invasion was to prevent the Iraq from a developing weapon of mass destruction. First of all, there is the most important reasons here: development weapon of mass destruction. And second here, since no evidence of WMD was found in Iraq. This is the most important conclusion here. There is no evidence of the WMD was found in Iraq. It was speculated that their invasion was motivated by other objectives, such as the control of Iraqi oil, fuel, and install a engine friendly to the US. This is the most important here. And thought there is a government of Saddam Hussein fell swift and the USA has not been able to be pacify Iraq. Instead, they are fully fledged insurgencies against there is a US's occupation was ignited in the Iraq. This is the most important reasons here. And while the USA has lost over 3,000 military personnel in the war, Iraq has constituted very much higher. It is a consequently estimate that is a 50,000 Iraqi civilians has been killed since the US led invasion. This is the most important point here. There is an important point in here. And the last point here, it is now widely recognized that the US invasion of the Iraq is some commercial respect was both to the military and political failure. This is important. There is a military and political failure here. आगे यदि हम बात करें 6वां क्वेश्चन जो कि 6th है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के विरुद्ध युद्ध कैसे छेड़ा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण, हमने हर एक क्वेश्चन में जो है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता हुआ और उसका युद्ध की प्रणाली जो देखा है काफ़ी सही है। कहते हैं कोई भी रूल रेगुलेशन तब बनाई जाती है जब हम पे संकट आता है।
तो अमेरिका ने भी संकट का आड़ लिया यहाँ पर और इराक पे जो है कब्जा हासिल किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के जो है एक कोड नाम चलाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी ये एक तरह का कोड था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक तरह का एक कोड था। इसका आक्रमण शुरू किया और संयुक्त राज्य द्वारा आक्रमण को अपना जनादेश देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश अमेरिका के नेतृत्व वाले इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के देखा जाए तो 40 जो है अन्य देश जो है सम्मिलित इसमें हो गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अगर हम इसमें बात आगे करें तो कहते हैं आक्रमण का उद्देश्य इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकना था। ये तो अमेरिका का सबसे बड़ा चाल था। देखा जाए तो WMD के रिगार्डिंग जो है इराक पे ये कार्रवाई की गई, यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है WMD के रिगार्डिंग ये चलाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब अमेरिका ने इंक्वायरी बैठाया इराक में तो वहाँ पर WMD के रिगार्डिंग कोई सबूत नहीं मिला। यानी जो देखा जाए तो इराक ने यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधियों में जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और उसने हथियार को भी नहीं रखा। यानी सामूहिक विनाश के हथियार जो थे WMD जो थे उसको वहाँ पर नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि आक्रमण अन्य देशों से प्रेरित था। अन्य देशों से प्रेरित का मतलब यही होता दोस्तों कि दूसरे के चराने पे अमेरिका जो है आ गया। लेकिन मुझे यहाँ नहीं लगता कि अमेरिका को किसी ने चराया होगा। जैसे इराकी तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना, अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी अमेरिका की। अमेरिका चाहती थी कि इराक जो है पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाए। कारण बहुत है। कारण जो है सबसे बड़ा तो यही है कि वहाँ पर कच्चे तेल का भंडार है और प्राकृतिक चीज़ जो है हर एक देश की अभी मांग है। इसलिए अमेरिका चाहता था कि अगर कच्चे तेल पर जो अपना अधिकार हो जाए तो पूरा विश्व जो है उसके अधिकार में चला जाएगा। और यही सोच लेके इसने जो है आगे जो है इराक पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि इराक जो है सामूहिक विनाश के हथियार अपने पास रखी हुई है। और इसलिए अनुमान लगाया गया कि अगर मैं अन्य देशों से प्रेरित था और देखा जाए तो इसके तेल क्षेत्रों में नियंत्रण करना स्वाभाविक उसको बना दिया था। तो यही सारी कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि सद्दाम हुसैन की सरकार ने तेज़ी से गिर गई। यानी ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इसके बाद सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी बहुत ही तीव्र गति से गिरी। लेकिन अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया। इसके वजह से इराक में अमेरिका के कब्जे के खिलाफ पुण्य विरोध की आग भड़क उठी। तो कहते हैं जनरल सी बात है, आप किसी को गुलाम बनाओगे, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आंदोलन का रूप धारण होना स्वाभाविक बात होता है। आजकल ये चीज़ें तो आज हर जगह देखने को मिला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं अगर अगली पॉइंट की तरफ हम रुक करें तो कहते हैं अमेरिका के युद्ध में जो है 3000 से अधिक सैन्य कर्मचारी को खो दिया अमेरिका ने और इराकी सैनिकों की संख्या अधिक हो गई थी। और यह अनुमान लगाया गया कि अमेरिका नेतृत्व वाले आक्रमण से जो है 50,000 जो इराकी नागरिक मारे गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50,000 नागरिक आम नहीं होते हैं और 3,000 सैनिक जो है इस युद्ध के आग में जल गए। तो यह काफ़ी महत्व रखता है और यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में इराक पर जो है अमेरिकी आक्रमण एक सैन्य राजनीतिक विफलता भी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक जैसा ही रहता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। और मैंने कहा ना, बच्चे जो क्वेश्चन त्रिपाण सेंटर में डाले हुए हैं, ठीक है, उनको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है एग्ज़ाम के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन मैं तब हैरान होता हूँ जब बच्चे आलसीपन करते हैं और वो जो कार्य नहीं करते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। ठीक है दोस्तों, और एक और कार्य करना है जो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण जो है चैप्टरों को पे बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए। अगर अगला वीडियो प्राप्त करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने कुछ नहीं करना है, जो रेड सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।